बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal. And I'm here to teach you English. Welcome to the channel Learn English with Mishal. In the last videos, we had discussed about noun, pronoun, verb, and adverb. So in today's video, we are going to talk about the next part of speech, which is adjective. In this video, we will discuss what is adjective, what are the examples of adjectives, what are the types of adjectives, and what are the errors you may do in the use of adjective. Before starting the video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Definition. So let's learn the definition of adjective. Adjective basically इसमें सिफ्त को कहते हैं जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में और बताता है, मतलब उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करता है, उसकी शेप, उसका साइज, फीलिंग्स, कंटेंट्स, राइट। एडजेक्टिव यूजुअली हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन के प्रोनाउन के बारे में। ये नाउन के प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है इस क्वेश्चन को आंसर, मतलब किस किस्म का है कोई चीज़, ठीक है, कितने हैं, which one किसके बारे में आप बात करें, how much. Adjective basically is a word that customize or intensifies a noun or a pronoun. It gives additional information about what the noun or the pronoun refers to. This usually comes right before the noun or the pronoun that it modifies. For example, tall girl, beautiful girl, handsome boy, right? Boy is a noun and handsome is an adjective. We can use more than one adjectives to describe a noun or a pronoun. हम एक sentence में एक से ज़्यादा adjectives इस्तेमाल कर सकते हैं. Examples: The colorful balloon floated over the treetop. The big dog chased the car. A yellow butterfly is sitting on the red rose. The tall giraffe is eating green leaves. A small rat is beside the brown cabinet. The beautiful princess is wearing a purple gown. इन सब examples में जो highlighted हैं yellow colors, वो सब adjectives हैं और इनके बाद word जो है वो noun है, जैसे कि balloon, butterfly. Types of adjectives. सबसे पहले descriptive adjectives की बात करें, basically हमें describe करते हैं noun और pronoun के बारे में. Most of the adjectives belong in this type. These adjectives provide information and attribute to the nouns and pronouns they modify or describe. जिस तरह के फनी लिटिल मैन, ग्रीन ग्रास ऊपर, ग्लास डोर. प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव्स की वो टाइप हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बनती हैं. जैसे कि प्रॉपर नाउन में आप स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं, इसी तरीके से आप प्रॉपर एडजेक्टिव स्पेसिफिक की बात करते हैं, जैसे कि स्विस चॉकलेट्स, अमेरिकन जीन्स, हाइड्रोजन गैस. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन. डेमोन्स्ट्रेटिव में आप किसी भी एक शख्स या फिर किसी भी चीज़ की तरफ रेफर करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, राइट. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज. अब पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव जो है, जैसे कि हमने पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि ऑनरशिप को शो करते हैं. इसी तरीके से पोजेसिव एडजेक्टिव आइडेंटिफाइज पोजेशन. इट सजेस्ट the belongingness of something to someone or something. In possessive pronoun और possessive adjective में ये difference है. possessive pronoun के बाद adjective का possessive pronoun के बाद verb का आना ज़रूरी नहीं है, कि possessive adjective के बाद noun का आना ज़रूरी है, जैसे कि my car, his cat, our job. Next is interrogative adjective. Interrogative adjective asks a question. An interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun. Interrogative adjective में आप basically question करते हैं, आप पूछते हैं कोई भी चीज़ के, आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं. Interrogative adjective के बाद हमेशा noun और pronoun आना चाहिए, जैसे कि which, what, why, whose. Next is compound adjectives. When compound nouns or combined words modify other nouns, they become a compound adjectives. Right? This type of adjective usually combine more than one word into a single lexical unit and modifies a noun. They are often separated by a hyphen or joined together by a quotation mark. जैसे कि broken down sofa, 6 foot long snake, I'm gonna kill you now. Let's proceed further. I hope all of you have learned the types of adjective. Let's proceed to next one. 3 degrees of adjectives. Basically, adjective have 3 degrees, which is positive, comparative and superlative. These degrees are used to compare one thing to another. एडजेक्टिव की ये 3 डिग्रीज यूज़ होती है इंग्लिश ग्रामर में, जिनको आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं.
पॉजिटिव डिग्री में, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में आप कोई कंपैरिजन नहीं करते, आप कुछ चेंज नहीं करते, आप एज इट इज लिख देते हैं, राइट। जिस तरह के ब्लैक, बिग, ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री में आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। आमतौर पे वर्ड के एंड पे ईयर लगाने से ईयर लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री इस तरीके से बन जाती है, जैसे कि ब्लैकर, बिगर, बेटर। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। कंपैरेटिव डिग्री में आपने सिर्फ एक चीज का दूसरी चीज से कंपैरिजन करना है। ऑन द अदर हैंड सुपरलेटिव डिग्री में आप एक चीज का एक से ज्यादा चीजों के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। और पॉजिटिव डिग्री के लास्ट पे EST डालने से आप सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं, जैसे कि ब्लैकेस्ट, बिगेस्ट, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, राइट। इर्रेगुलर कंपैरिजन। लास्ट स्लाइड में हमने सीखा कि अगर आप पॉजिटिव डिग्री के लास्ट पे ER लगाएं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, अगर EST लगाएं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। लेकिन ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके लास्ट पे ER या EST लगाकर आप इनकी डिग्री चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। आप गुड के लास्ट पे आप ER लगाकर गुडर, वो इट्स अ रॉन्ग वर्ड, EST लगा देंगे, वो भी रॉन्ग है। लेट, लेटर, लास्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये आपको याद करना होंगे। There are 5 words which are adverb in first degree, but in second and third they are adjectives. जैसे कि for, further, furthest, in, inner, innermost, out, outer या utter, और uttermost या utmost, beneath। ये सारे adverb हैं, for, in, out, beneath, up। लेकिन जब इनकी डिग्री कंपैरेटिव होगी या सुपरलेटिव होगी तो ये एडजेक्टिव्स होंगे। एरर्स जो कि आपको एडजेक्टिव्स के यूज में नहीं करनी। वन थिंग इज कंपेयर्ड विद वन थिंग। यूजुअली ये होता है कि स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक ही सेंटेंस में दो एक चीज को मुख्तलिफ चीजों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ये गलत होता है। जिसके एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉय इज मोर क्लेवरर देन ऑल द बॉयज। मतलब एक बॉय का कंपैरिजन किया जा रहा है ज्यादा बॉयज के साथ। डिग्री शुड नॉट बी डबल, मोर पहले ही कंपैरेटिव डिग्री है। अगर आप उसके साथ एक और कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। जैसे कि एग्जांपल, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर। ये रॉन्ग है, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर। आपने मोर और क्लेवरर इकट्ठा यूज नहीं करना। इफ एनी इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री देन यूज अदर विद इट। जब भी आप सेंटेंस में एनी यूज करेंगे तो आपने अदर लाजमी इस्तेमाल करना है। ही इज टॉलर देन एनी मैन इन द टाउन। जुमला गलत है, आपने एनी के साथ अदर यूज करना है। ही इज टॉलर देन एनी अदर मैन इन द town. Clear? When a sentence has two noun and one noun is in superlative degree, then make superlative the other one. And don't use the or the with it. He is the ablest and rich man of the city. It is the wrong sentence. He is the ablest and richest man of the city. Some pair of words in the use of adjective. Some is used in affirmative while any is used in the negative sentence. Some हम positive sentences में इस्तेमाल करते हैं जबकि any आप negative sentences में इस्तेमाल करते हैं. Much denotes quantity और many denotes number. Little means hardly, any और not इसका नेगेटिव मीनिंग होता है. A little means some. जब आप little के साथ आ लगा देंगे उसका मतलब होता है कम. The little means something already present. Next is few. Few means not any. A few denotes at least a certain number. The few से मुराद जो कुछ पहले से मौजूद हो, थोड़ा या फिर ज्यादा, बिल्कुल the little की तरह. Elder और eldest खूनी रिश्ते में बड़ा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि elder brother. Older और oldest एक खानदान में अफराद के बड़े होने को जाहिर करते हैं. Clear? Okay. Last और फाइनल इनका मतलब आखिरी होता है. लेटेस्ट और न्यू इसका मतलब जदीद या फिर नया. म्यूचुअल का मतलब है बाहमी यानी कि आपस में. और कॉमन मुश्तरका यानी कि एक जैसा. असलम एंड आरिफ आर mutual friends. I hope all of you have learned about adjective. If you have any query or you want to give me any suggestion, you are more than welcome. You can give it to me in comment section. Allah Hafiz. Take care of yourself. See you in the next video.